My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the concept of area of a triangle and then we'll be doing practice questions. Start करते हैं सेशन को. Area of a triangle. So जैसे नंबर सिस्टम में 1 is the basic number, the starting number, and all the other numbers are just repetition of 1. Similarly, for a triangle, the basic triangle, the most basic triangle is right angled triangle. Let us say ABC triangle, this is a right angle triangle. And we need to find out area of triangle ABC. Okay. And base of this is BC of length B and height is H. Base is B and height is H. What we can do, we can construct another triangle. अब इसी triangle को पलट देंगे, पलट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज कर देंगे. So basically this will form a very familiar shape जिसका एरिया हमें पता है, and that shape is a rectangle. This will also be B, this will also be H. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD, AR in short for area, एरिया ऑफ ABCD will be equal to लेंथ into breadth. लेंथ है हमारा B, breadth है H, तो B into H. This will be area of ABCD and area of triangle ABC and area of triangle ACD, these are equal. और एरिया ऑफ ABCD क्या है? बेसिकली these two triangles का सम है, एरिया का सम है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है, द होल इज सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इजंट इट सो? तो दोनों का सम है और दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ABCD, और वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC becomes 1/2 into base into height. Is this clear? ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, क्लियर हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल. Okay, now let us say there is another triangle which is not a right angle triangle this time. This is a scalene triangle, all sides are different. मार्क कर लेते हैं ABC, ठीक है. सो दिस ABC ट्रायंगल इज अ स्केलिन ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट. एक जुगाड़ करते हैं, यहाँ पे A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं BC पे, सो दैट वी कैन मेक राइट एंगल ट्रायंगल्स. सो A से BC पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दैट परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज D पे इंटरसेक्ट कर रहा है BC को. सो नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. These two are right angle triangles. Isn't it so? Clear? So what will be the area of these two triangles? So we can say that area of triangle ABC, this will be equal to area of triangle ABD plus area of triangle ACD. Area of triangle ABC will be equal to area of triangle ABD plus area of triangle ACD. Isn't it so? Okay. Or what will be area of triangle ABD? ABD is a right angle triangle, so 1/2 into base which is BD into height which is AD, so 1/2 into BD into AD. Similarly, area of triangle ACD will be equal to 1/2 into CD into AD, and if you add these two, so area of triangle ABC मिल जाएगा हमको, summation of these two, and that will be equal to 1/2 into AD तो कॉमन है, AD और 1/2 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो, तो 1/2 into AD टाइम्स BD plus CD, and BD plus CD is equal to BC only. So area finally becomes 1/2 into BC into AD, basically 1/2 into BC which is base and AD which is height. So even for this triangle the area will be 1/2 into base into height. Okay.
So area will be equal to 1 by 2 into base into height. And this symbol of triangle, this represents area. ठीक है, this also represents triangle. In general हम triangle के लिए represent कर रहे हैं, but in this case area के लिए भी हम इसी symbol का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, so this triangle represents area. So area will be equal to 1 by 2 into base into height for any triangle in general. और कोई भी और ट्रायंगल होगा जहां पे कि हमें हाइट दिख नहीं रहा होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो वहां पे विल बी ड्राइंग एन एल्टीट्यूड इफ पॉसिबल, या फिर इंफॉर्मेशन गिवन होगा अकॉर्डिंगली. ओके, क्लियर है? सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इट, so let us draw a triangle ABC once again and then drop a perpendicular from A to vertex BC. So AD is perpendicular to BC. Okay, so area of triangle ABC, this will be equal to 1 by 2 into AD into BC. कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बट पॉइंट ये है कि ऐसा थोड़ी है कि ट्रायंगल में सिर्फ BC ही बेस है, बिकॉज BC हमारा बॉटम पे आ रहा है, ऐसा नहीं है. वी कैन मेक एनी बेस, तो BC भी बेस है, AC भी बेस हो सकता है, AB कैन ऑल्सो बी बेस. सो AB और BC और AC, एनी ऑफ द साइड्स कैन बी बेस, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ड्रॉ एल्टीट्यूड. सो अगर AC को बेस एज्यूम करते हैं, देन वी कैन ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट B, एंड दैट एल्टीट्यूड विल बी BE. ठीक है, एंड B कट्स AC एट पॉइंट E. So area of triangle ABC can also be written as 1 by 2 into base AC multiplied by altitude for that base which is BE. एक सेकंड, पहले वाले, हाँ उल्टा लिख दिया क्या? पहले वाले में AD और BC, पहले BC लिखते हैं फिर AD लिखते हैं. ठीक है, बेस इंटू हाइट, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल भी. तो 1 by 2 इंटू BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट. और C से भी एल्टीट्यूड ड्रॉप कर सकते हैं, सो C से एल्टीट्यूड ड्रॉप कर देते हैं. This CF is also perpendicular and CF is perpendicular to AB. तो बेस अगर हमारा AB है तो 1 by 2 into base which is AB multiplied by height which is CF. So all three should be equal because all three are representing only area of the triangle ABC. Same triangle का area represent कर रहे हैं, तो all these three should be equal, isn't it so? So basically the product BC into AD, this will be equal to, अगर 1 by 2 times equal है तो सेपरेटली भी 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कॉमन आके हटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 by 2 का रिमूव कर दोगे बिकॉज कॉमन आ जाएगा, तो BC इंटू AD विल बी इक्वल टू AC इंटू BE एंड दैट विल बी इक्वल टू AB इंटू CF. क्या ये बात समझ में आती है? टू समराइज दिस, इन अ ट्रायंगल ABC वी हैव 3 bases, बेसिकली 3 sides and 3 corresponding heights or altitudes, ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ दोज बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, यानी कि B1H1 will be equal to B2H2 will be equal to B3H3 and this will be equal to 2 times the area of the triangle. Is this clear? Okay. ठीक है. Next conclusion. Let us say we have 2 parallel lines and on base AB there is one triangle ACB, there is another triangle ADB and another triangle AEB. So all these 3 are different triangles, triangle ACB, triangle ADB, triangle AEB. ठीक है, and this line AB is parallel to CE. So if AB is parallel to CE, the height between them will be constant. This height H is constant. So area of triangle ACB will be equal to area of triangle ADB will be equal to area of triangle AEB, because height same है और base भी same है. height is same, H same है और base भी same है. base तो AB है तो भी same है, both are same, that is why area will also be same irrespective of shape of the triangle.
or anything else? Clear है? So area of all these triangles will be equal. Is this clear? ठीक है. Now in a triangle ABC, let us draw median AD. Triangle ABC में we have drawn median AD and median bisects the opposite side in two equal halves, यानी कि BD will be equal to CD because AD is the median. ठीक है, मीडियन है, परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है ये. ठीक है, दिस इज मीडियन. ये एंगल, दिस एंगल माइट नॉट बी 90 डिग्री, कैन बी एनी वैल्यू एंड माइट नॉट बी 90 डिग्री, हो भी सकता है, मे बी पॉसिबल भी है, बट कोई भी वैल्यू हो सकता है. सो दिस इज मीडियन, एडी इज मीडियन. सो बेस हमारा इक्वली बीडी और सीडी में बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, और हाइट तो सेम होगा. फॉर द ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी हाइट इज सेम. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी will be equal to 1 by 2 into BD into height, and area of triangle ACD will be equal to 1 by 2 into CD into height. तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका? हाइट से हाइट will get cancelled out, 1 by 2 से 1 by 2 will get cancelled out, and ratio will be BD by CD, and since AD is the median, so ratio will be 1:1. So area will be equal for both these triangles. Area of triangle ABD and area of triangle ACD, that will be equal, isn't it so? So basically median in a triangle does not just bisect the base, but it also is a area bisector. Bi यानी कि 2, sector यानी कि 2 parts में कट करना. So a median cuts a triangle into 2 equal halves in terms of area. Median cuts a triangle into 2 equal halves in terms of area. क्या ये क्लियर है? Is this clear? Okay. Now just in case there is a triangle ABC where we are drawing a line AD which is median, a line AE which is altitude. ठीक है, so there are total many triangles that are being formed. Area of triangle ABC, area of triangle ABD, area of triangle ADC, area of triangle ABE. इनका रेशियो क्या होगा? For all these triangles height is equal. हाइट तो इक्वल है, तो एरिया विल बी proportional to the bases, base length. ट्राइंगल ABC का बेस क्या है? That is BC. फॉर ट्राइंगल ABD बेस क्या होगा? बेस विल बी BD. और ट्राइंगल ADC के लिए बेस क्या होगा? बेस विल बी DC. एंड फॉर ट्राइंगल ABE बेस विल बी BE. तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी BC is to BD is to DC is to BE. इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चंस करते हैं. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अब. First question. So the first question is, what is the smallest length of the altitude of a triangle with sides 5, 12 and 13? Smallest length of the altitude of a triangle with sides 5, 12 and 13. तो since we know कि altitude multiplied by side, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले खुद से टाइम देना है, फिर सॉल्यूशन देखना है. ठीक है, सो हमें 3 sides are given, all 3 sides are given 5, 12 and 13, and we know this is a triplet as well. This is a Pythagorean triplet, so this will be a right angle triangle. 12, 5, 13 है कि नहीं? बट हमें क्वेश्चन ने पूछा है स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एंड वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर ए ट्राइंगल.
ठीक है, सो B1H1 is equal to B2H2 is equal to B3H3 and that is 2 times the area of the triangle. So smallest length of the altitude कब होगा? जबकि हमारा जो base है that will be largest because product is constant. So smallest length of altitude will be for largest side. For largest side, and in this case largest side हमारा कौन सा है? Hypotenuse है. तो altitude corresponding to the hypotenuse will be the largest. That will be the largest. Isn't it so? So let us say this is H. So H will be smallest altitude. Okay. And area of triangle will be same for all cases. Now since this is a right angle triangle, तो area क्या आ जाएगा हमारा? Area will be, area of triangle ABC will be, if this is A, this is B, this is C. So area of triangle ABC will be 1/2 into base into height. Or since this is a right angle triangle, so 5 will be the base, BC will be the base, AB will be the height, 12 will be the height. So 1/2 into 5 into 12. This will be the area. When BC is base and AB is height, or second scenario में when AC is base and H is the height, so this area will be equal to 1/2 into 13 into H. Equate कर दो. So H will be equal to 60/13. So 4 and 8/13. This will be the height of the triangle, smallest altitude of the triangle. क्या ये clear है? Smallest altitude will be 60/13. Okay. बाकी साइड्स पे altitude कौन कौन से हैं? Basically this AB, since AB is perpendicular to BC, so AB is altitude. साइड AB altitude है BC का, साइड ही altitude है, AB is altitude of BC. गंगाधरी शक्तिमान है, AB ही हमारा एल्टीट्यूड है और AB ही साइड भी है. द ओनली पॉइंट इज कि AB इज एल्टीट्यूड फॉर साइड फॉर बेस BC. जब बेस BC को हम कंसीडर करते हैं तो AB इज द एल्टीट्यूड. सिमिलरली BC इज परपेंडिकुलर टू AB, सो BC इज एल्टीट्यूड फॉर AB. और जो हमारा BD हमने ड्रॉ किया है, H ड्रॉ किया है, दिस BD विल बी एल्टीट्यूड फॉर AC. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ द साइड्स आर इन द रेशियो 4:5:6. तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स टू द रिस्पेक्टिव साइड्स. अगर मैं साइड्स का रेशियो गिवन है दैट इज 4:5:6, तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड्स? तो रेशियो ऑफ साइड्स इज 4:5:6. एरिया एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज यू नो कि प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड एल्टीट्यूड इज कांस्टेंट. एरिया एज्यूम कर लेते हैं. एलसीएम इन सारी वैल्यूज का 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 × 5 30, 2 = 60. तो इफ 60 इज द एलसीएम, तो साइड लेंथ की वैल्यू है 4, 5, 6. तो एल्टीट्यूड का रेशियो क्या आ जाएगा? 60/4. फर्स्ट वैल्यू है 15, सेकंड 60/5, 12 और थर्ड आ जाएगा 10. सो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स विल बी 15, 12 एंड 10. ठीक है, एरिया हमने एज्यूम किया है, कोई भी वैल्यू ले सकते थे क्योंकि एरिया के और कोई इन्फॉर्मेशन एडिशनल तो हमें गिवन नहीं है. ठीक है, सो एल्टीट्यूड का रेशियो विल डेफिनेटली बी 15, 12 एंड 10 इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा एक्चुअल वैल्यूज क्या है. वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा. ओके, हमें एक्चुअल लेंथ की जरूरत नहीं है. रेशियो वाज सफिशिएंट टू फाइंड आउट कि एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या होगा. ओके, बिकॉज अगर साइड हमारा लेट अस से 4K, 5K और 6K होता है तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 into 4K H1, that will be equal to 1/2 into 5K H2, that will be equal to 1/2 into 6K H3. ठीक है, और जब सारे इक्वल हैं तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, K भी कैंसिल आउट हो जाएगा. बचने वाला है सिर्फ 4H1 इज इक्वल टू 5H2 इज इक्वल टू 6H3. सो H1 H2 H3 का वहां से रेशियो निकल आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B cuts AC at point X such that AX is to CX is equal to 3:5 and area of triangle ABX is 22.5 square units. Area of triangle ABC क्या होगा if the altitude drawn from vertex B cuts AC at point X? ज्योमेट्री में सबसे पहला काम बनाना एक प्रॉपर डायग्राम, उसके बाद में कहानी शुरू होगी. सो A B C. एक सेकेंड, क्वेश्चन में हमें ये करना है वी हैव टू ड्रॉ अ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B कटिंग AC. तो अगर हमें वर्टेक्स B से एल्टीट्यूड ड्रॉप करना है AC पे तो बेस्ट ये होगा कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग एल्टीट्यूड लाइक दिस, B को ही वर्टेक्स पे रखते हैं. ठीक है,
तो ज़्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे चीज़ों को बेटर तरीके से. सो लेट अस से दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी. ओके, एंड देन altitude is bx और altitude है 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ax is to cx is 3:5, so this ratio is 3:5. okay, and since height is equal, bx is common for both these triangles, triangle abx and triangle cbx के लिए bx तो कॉमन है, तो हमारा एरिया विल बी इन द रेशियो 3:5. एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 3:5 होगा. ठीक है, इन द रेशियो ऑफ द बेस, बिकॉज bx तो कॉमन है, हमारा हाइट तो कॉमन है, इजंट इट सो? 3:5 के रेशियो में होगा एरिया. और फिर हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX इज 22.5, तो यानी कि 3 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 22.5 स्क्वायर यूनिट्स. तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 7.5. अगर 3 यूनिट्स इज इक्वल 22.5, 1 यूनिट विल बी 7.5. और क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच विल बी टोटल 3 + 5 8 यूनिट्स. तो या तो 5 यूनिट्स की वैल्यू निकाल के फिर ऐड कर दो, और या फिर टोटल 8 यूनिट्स का वैल्यू निकाल लो. 1 यूनिट 7.5, 5 यूनिट हो जाएगा 5 × 7.5 यानी 35 + 2.5 37.5. So area of triangle ABC will be equal to 22.5 plus 37.5 60. Answer will be equal to 60. Area of triangle ABC will be equal to 60. Clear है? Okay. Next question. In a triangle ABC, altitude drawn from vertex C to side AB cuts AB externally at x such that AX is to BX is equal to 5:3. If area of triangle ACX is 30 square units, find the area of triangle ABC. Now in this question, the question is saying that vertex C से हमने जो altitude drop किया है, that altitude cuts AB externally. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? The altitude cuts AB externally. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, लेट अस से वी हैव लाइन AB, ठीक है, एंड अ क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ पॉइंट C दैट कट्स AB एक्सटर्नली in ratio AC is to BC is equal to 4:3. Cutting externally implies that C point is not inside the line AB. Line length, line segment AB में lie नहीं करता है, इसके बाहर externally lie करता है. So we have to extend this line AB. Okay. Let us say point C is on this side. ठीक है, let us assume that point C is on this side. So if point C is on this side, question is saying AC is to BC is 4:3. AC is to BC is 4:3. ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या है? AC है. AC और BC का रेशियो है 4:3, बट यहां पे AC इज स्मॉलर वैल्यू इन कंपैरिजन टू BC, यानी कि our assumption is incorrect. तो C is not on left side, rather C must be on the right side, because if C is on the right side, then definitely AC will be greater than BC. और AC is to BC का रेशियो 4:3, तो if AC is 4, BC will be 3. AC is 4, BC will be 3, और since AC in this case, AC क्या है? AC is AB plus BC, यही तो है. AC is AB plus BC, तो अगर AC 4 है, BC 3 है, तो AB must be equal to 1. क्या ये बात क्लियर है? If AC is 4, BC is 3, तो AB must be equal to 1. Pause the video. Similarly, ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करो अपने एंड से. टेक योर टाइम, डायग्राम बनाओ प्रॉपर इसका, उसके बाद में ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो इन दिस केस, क्योंकि यहां भी हमारा एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो डायग्राम कैसा बनेगा? इफ इट वॉज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर क्यूट वाला ट्रायंगल होता अपना, इफ इट वॉज अ क्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, तो वर्टेक्स सी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, सो दैट विल ऑलवेज बी कटिंग द साइड ए बी इंटरनली, यानी कि जो पॉइंट हमारा होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, दैट विल ऑलवेज बी इनसाइड ए बी, बिटवीन ए एंड बी. बट इफ दैट इज नॉट द केस, तो यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज नॉट एक्यूट ट्रायंगल, that must be some obtuse triangle. And if it is obtuse triangle, then when you draw perpendicular on AB, it will be outside AB. क्या ये बात क्लियर है? तो this must be obtuse triangle.
दैट इज फर्स्ट कंक्लूजन। ओके, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें। सेकेंड पार्ट, ए एक्स इज टू बी एक्स इज 5:3। सो लार्जर वैल्यू कौन सा है, ए एक्स या फिर बी एक्स? ए एक्स इज लार्जर देन बी एक्स, ठीक है। सो इफ एक्स इज लेट अस से हियर, ठीक है, इसको ये तो है नहीं एक्स, सो इफ एक्स इज हियर तो ए एक्स विल बी स्मॉलर देन बी एक्स, बट ए एक्स इज एक्चुअली लार्जर, सो दैट इंप्लाइज कि या तो हमारा एक्स को इस साइड में ड्रॉ कर लो, एक्स विल बी समवेयर हियर, देन ए एक्स विल बी लार्जर देन बी एक्स, या फिर ऐसा करो कि ए और बी को स्वैप कर दो, यानी कि एक्स को यहीं पे रखो, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, तो किसी भी एक तरह से डायग्राम बना लो। सो दिस केस इज ऑल्सो परफेक्ट और दिस केस इज ऑल्सो परफेक्ट। डायग्राम बनाओगे तभी समझ में आएगा, तो एक बार डायग्राम अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो इनमें से एक केस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड व्हाट विल बी बेस्ट मेथड? द बेस्ट मेथड विल बी कि डोंट नेम ए एंड बी फर्स्ट, ठीक है। सी से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, एक्सटेंड ए बी। अभी हमें नहीं पता कि वेदर दिस इज ए और बी, ठीक है, बट वी नो फॉर श्योर दैट दिस पॉइंट इज एक्स, दिस पॉइंट इज एक्स। नाउ ए एक्स इज टू बी एक्स इज 5:3, तो ए एक्स शुड बी लार्जर देन बी एक्स, यानी कि बी को यहां पे रख दो, ए को यहां पे रख दो। अब डायग्राम हमारा परफेक्ट बन गया। ए एक्स इज टू बी एक्स इज 5:3, सो इफ ए एक्स इज 5, बी एक्स इज 3, सो ए बी कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2, ए बी विल बी 2, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स बी, सी एक्स बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सी एक्स बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल में क्योंकि हाइट सेम है, हमारा हाइट सी एक्स इज सेम फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, ऑल दीज गिवन ट्रायंगल्स, सी एक्स बी की बात करो, सी ए बी की बात करो, या फिर सी एक्स ए की बात करो, सारे ट्रायंगल्स के लिए फॉर ऑल 3 ट्रायंगल्स हाइट इज सेम, सो बेस के रेशियो में एरिया होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स इज गिवन एज 30 स्क्वायर यूनिट्स, और ए सी एक्स हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल है, लार्जेस्ट ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल डेफिनेटली बी लेस देन 30। एडिशनली ट्रायंगल सी एक्स बी में हमारा बेस कितना है? 3 यूनिट्स है, तो एरिया विल बी 3 यूनिट्स बिकॉज हाइट तो कांस्टेंट है। और सी बी ए में बेस इज 2 यूनिट्स, तो एरिया विल बी 2 यूनिट्स। एंड ए बी सी का निकालना है ट्रायंगल का एरिया हमें, जबकि ए सी एक्स का एरिया इज गिवन, और ए सी एक्स का एरिया क्या है? 3 + 2 5 है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 30, 5 यूनिट इज इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 6, एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया विल बी 2 यूनिट्स, यानी कि 2 × 6 12 स्क्वायर यूनिट्स। The answer will be 12 square units. Is this clear? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure given, ABCD is a rectangle. The area of the isosceles triangle ABE is 7 square centimeter and EC is equal to 3 times BE. Then find area of rectangle ABCD. This is a previous year question from CAT 2002. Area of isosceles triangle ABE. अब diagram is of course not up to the scale because हमें ABE कहीं से भी isosceles तो नहीं दिख रहा है, but है isosceles, ठीक है। So AB is equal to BE. AB is equal to BE. Additionally, EC is equal to 3 times BE. So if BC is 1 unit, EC हमारा कितना हो जाएगा? This will be 3 units. Okay. And area of triangle ABE is 7. ठीक है, so BE is 1 unit, EC is 3 units. क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा? What will be area of rectangle ABCD? So एक काम करते हैं, सबसे पहले AC को, AC डायगोनल को बना दो, because once you make diagonal AC, now you know कि area of triangle ADC, this will be equal to area of triangle ABC. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, और दोनों का एरिया इक्वल होगा, बिकॉज इफ दिस साइड लेंथ BC, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू BC, AD is also equal to BC, और हाइट तो सेम ही है दोनों के लिए। ओके, नाउ एडिशनली वी नो दैट रेशियो ऑफ BE एंड CE इज 1:3, 1:3 का रेशियो है, तो अगर 1 रेशियो आ रहा है बेस का यहाँ पे फॉर BE, फॉर EC द रेशियो इज 3, तो एरिया का रेशियो भी क्या होगा? 1:3 होगा, क्योंकि हाइट सेम है।
सो एरिया 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग इज 7, तो 3 यूनिट करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 × 7 21. दिस एरिया विल बी 21. और इफ द एरिया फॉर ट्रायंगल ABC is 7 + 21 which is 28, so that for ADC will also be 28. This will also be 28. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 28 + 28 दैट विल बी 56. 56 विल बी आवर आंसर. इसी सेम स्टोरी को ऐसे भी सोच सकते थे कि रेशियो ऑफ BE एंड CE इज 1:3. एरिया ऑफ AB एंड BA आर इक्वल. लेट अस से AB इज x, B इज आल्सो x. तो एरिया क्या हो जाएगा, सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया विल बी 1/2 x² एंड दैट इज 7. तो x² इज इक्वल टू 14. So x will be equal to √14. So height DC or AB will be √14 and BE will also be equal to √14. तो EC कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है, तो this will be 3√14. So area of ABCD will be 4√14 into √14. So 4 into 14 56 आ जाएगा. एरिया will be 56. Is this clear? दोनों अप्रोच एक जैसा ही है, दोनों समझ में आना चाहिए. Okay, clear. Next question, find the area of the triangle with side lengths 10, 17 and 21. 10, 17 and 21. Now this is a scalene triangle. ठीक है, Heron's formula का हम यूज नहीं करेंगे. We will only be using right angle triangle to find out the area. ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं. देखो, the sides are given as 10, 17 and 21. Okay. So definitely this is not a right angle triangle. ठीक है, but if we drop a perpendicular and since हमें length सारी की सारी इंटीजर में given है, तो chances are that we might be able to make 2 right angle triangles out of it. We might be able to make 2 right angle triangles out of it. Isn't it so? So any triangle can be converted into 2 right angle triangles. ठीक है, any triangle can be converted into 2 right angle triangles. That is always possible. But इसके बाद की चीज इंपॉर्टेंट है कि it is not always possible कि हमेशा जब भी 2 right angle triangle बने तो उनके जो साइड लेंथ्स हो वो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करें. That is not always possible. But in many cases this will be possible. In this case this is possible. But हमेशा possible नहीं होगा. ठीक है, हमेशा 2 right angle triangle में तो जाएगा ट्रायंगल. ठीक है, चाहे तुम एल्टीट्यूड ड्रॉप करो वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए से, लेट अस से इफ दिस इज ए, तो चाहे ए से ड्रॉप करो, चाहे इंस्टेड बी से ड्रॉप कर दो वर्टेक्स, वो भी चलेगा. ठीक है, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो भी बन जाएगा. तो वी कैन ऑलवेज मेक 2 right angle triangles from one triangle, but it is not always necessary that those 2 right angle triangles will have side lengths that are integers. That is not always possible, but in this case we will be trying. ठीक है, so we have total 2 side lengths 10 and 17 which we have seen in Pythagorean triplets. ठीक है, these 2 we have seen in Pythagorean triplets. So 10 or 17 those both we have seen. So these can be hypotenuse values. 10 and 17 can be the values of the hypotenuse. And if that is the case, तो AD must be common in both these triangles. ठीक है, तो first triangle is triangle ADB जहां पे hypotenuse is 10. Second triangle is triangle ADC where hypotenuse is 17 and AD is common in both. So 10 के केस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रिपलेट इज 6, 8 and 10. 17 के केस में द कॉम्बिनेशन इज 8, 15 and 17. So there must be one common side in both of these. तभी पॉसिबल है कन्वर्ट करना. So yes, we are getting 8 in both. The side 8 is common in 6, 8 and 10 as well as 8, 15 and 17. So the side length AD, the altitude AD must be equal to 8. So if this is equal to 8, this will be 6 and DC will be 15. लास्ट में कंफर्म कर लो कि 6 + 15 21 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 21 आ रहा है. दिस इज इक्वल टू 21. सो डेफिनेटली दिस इज द सिनेरियो. यही हमारा ट्रायंगल है. तो एरिया क्या आ जाएगा, बस इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लो, या फिर एरिया क्या निकाल लो. अब हमें एल्टीट्यूड पता चल गया है, तो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2
into base, and base is 21, into height which is 8. So 21 into 4, area will be 84. Area will be equal to 84. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this clear? ठीक है. Okay, next question. Another correct previous year question from 2001. Two sides of a plot measure 32 meters and 24 meters, and the angle between them is a perfect right angle. Perfect right angle है between 24 and 32. Other two sides जो है उनका measurement क्या है? 25 meters each. And the other three angles are not right angles. Very important. Other three angles are not right angles. They can be any value. So what will be area of the plot? Pause the video and try to solve it. ठीक है. So 24 और 32 के बीच में तो right angle बन रहा है. बाकी angles हमारे right angle नहीं है. Okay. So what should be the approach? Since we know 24 and 32 के बीच में there is a right angle और ratio क्या आ रहा है side lengths का? 24 और 32 integer values है, ratio क्या आ रहा है? 3:4. So 3, 4, 5 वाला Pythagorean triplet है. The first side length is 3 into 8. Second is 4 into 8. तो hypotenuse will be 5 into 8 यानी कि 40 होगा. ड्रॉ कर दो. So hypotenuse will be equal to 40. Okay. अब सेम अप्रोच जो पिछले क्वेश्चन में लगाया. Can we see that this 25 looks like the hypotenuse? 25 Pythagorean triplet का एक फॉर्म हो सकता है. So this might be 7, 24, 25 वाला केस, और this could be 15, 20, 25, basically 3, 4, 5 वाला केस multiplied by 5. So these three are possible cases. Which one will apply here? Since both these side lengths are 25, and if we drop a altitude, this is basically isosceles triangle, isn't it so? And if we are dropping altitude, so this side, this will be bisecting the base. So both side lengths should be 20, and if these two are 20, then altitude will be equal to 15. Altitude हमारा 15 हो जाएगा. क्या है? क्लियर है? So we have now three right angle triangles. Area easily निकाल लोगे. क्या है area? Area for first right angle triangle 24 into 32 will be 1/2 into 24 into 32, and area for other two triangles, because both triangles are same, remaining two triangles are same, so area क्या आ जाएगा? 2 into 1/2 into base is 20 into 15, और 1/2 into 14 into 15, whichever you prefer. तो फर्स्ट केस में क्या आएगा? हमारा एरिया विल बी 12 into 32, which is 320 plus 64, 384, और सेकंड केस में वैल्यू आ जाएगा 2, 7/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस 300. So this will be 684 meters square. Area of this plot will be 684 meters square. Is this clear? Okay. ठीक है. 684 meters square will be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 252 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज. फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज. So if this is the right angle triangle, area will be 1/2 into AB, which is 2646. So A into B will be equal to 2 into 2646. Perimeter will be A plus B plus C, which is equal to 252. Now can you factorize 2646? 6 का मल्टीपल तो है, ठीक है, 6 का मल्टीपल है, 6 को कॉमन ले लिया, बचेगा कितना? 441. तो दिस इज बेसिकली 2 into 6 into 441. 441 क्या है? 21 स्क्वायर, तो 21 into 21. ओके. पेरीमीटर इज 252. इफ यू फैक्टराइज 252, दिस बिकम्स 21 into 12. बिकॉज 21 हमें जैसे ही दिख गया हमारी आंखें चमक गई. अब हमें 21 को खोजना था पेरीमीटर में भी, तो पेरीमीटर इज 21 into 12. पेरीमीटर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 21. एरिया इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 21. तो चांसेस आर
that sides A, B and C are a multiple of 21? Chances are that they might be a multiple of 21 because हमारा पेरीमीटर में 21 into 12 आ रहा है और एरिया इज 21 का स्क्वायर into something, 21 का स्क्वायर into 12. Isn't it so? Because basically होगा क्या, if let us say A and B, A is 21 times K1 and B is 21 times K2. So when you are adding these two, A and B, this becomes 21 times K1 plus K2. Okay. But when you are multiplying A and B, this will be 21 square times K1 K2. So that is why if we are getting 21 square in the product and sum may we are getting multiple of 21, then definitely chances are that both the sides are a multiple of 21. Isn't it so? और if A and B both are multiple of 21, तो जो hypotenuse होगा वो भी 21 का multiple होगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. So they might be, A and B might be 21 K1 into 21 K2 for A and B, or this value will be 21 into K1 plus K2 plus K3 because A plus B plus C है. ठीक है. So K1 into K2 कितना आ जा रहा है फिर हमारा? This is 2 into 6. Basically number is, this product is 12 into 21 into 21. तो 21 को भूल जाओ, बचा सिर्फ 12 है. सिमिलरली यहां पे 12 पे फोकस करो. इन दिस केस 12 इज A into B. ठीक है. K1 into K2. So this might be 1 into 12 or 2 into 6 or 3 into 4. But since this is a right angle triangle, तो 1 और 12 से कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं, 2 और 6 से भी बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज इंटीजर में आ रही है पेरीमीटर में. 3 और 4 से बनेगा, 3, 4 और 5 का. एंड इफ दैट इज द केस, तो 3 plus 4 plus 5 is coming out to be 12, which is the case here. 21 into 12 है, लेकिन डेफिनेटली K1 plus K2 plus K3 that is 12, that is 3 plus 4 plus 5, और K1 will be equal to 3, K2 will be equal to 4, K3 will be equal to 5. तो साइड लेंथ हमारी हो जाएगी 21 into 3, 21 into 4 and 21 into 5. क्या ये क्लियर? क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज पूछा था, आंसर विल बी 105. 105 will be the answer. And this is the shortest method to solve this question. Otherwise इक्वेशंस बनाओगे टाइम ज्यादा खराब करोगे. अदरवाइज इक्वेशंस बनाओगे क्योंकि A into B की वैल्यू मिल गई हमें. ठीक है. सिमिलरली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से अज्यूम करोगे C स्क्वायर, फिर इक्वेशंस बनाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन को पाइथागोरन ट्रिपलेट से हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे. क्या ये क्लियर है? ठीक है. व्हाट वी डिड दैट we found out that area is 2646, which is 6 into 441, and this is 1 by 2 into AB. So A into B is 2 into 6 into 21 into 21. ठीक है. So one side will be 21 into something, other side will also be 21 into something. वही प्रोडक्ट हमारा 21 स्क्वायर into something आएगा. ठीक है. और पेरीमीटर इज 252, which is 21 into 12. तो साइड लेंथ का सम 21 को कॉमन ले लोगे, that will be something plus something plus something. ओके. तो चांसेस क्या है? 20 स्क्वायर तो हो गया, A into B 2 into 6 12 आ गया, 12 कैन बी 4 into 3, और 4 into 3 से हमें दिख रहा है 3 plus 4 plus 5, दैट इज आवर पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 वाला. एंड इफ दैट इज द केस, तो 3 into 4 तो 12 आ गया हमारा, और 3 plus 4 plus 5 is 12, जो कि पेरीमीटर में आ रहा है, जो कि पेरीमीटर में आ रहा है. ओके. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, AB is 17, BC is 12 and AC is equal to square root of 241. तो what will be area of triangle ABC? What will be area of triangle ABC? अब यहाँ पे एक साइड खतरनाक है, AC is root 241. और जैसा we have already understood that we can make two right angle triangles from any triangle, though it is not always necessary that we will be getting a Pythagorean triplet, but chances are that we may. ठीक है. So one side is 17 and 17 again is part of a Pythagorean triplet, यानी कि 8, 15 and 17 might be a possible case. And this root 241, this might be as a result of, this might be the hypotenuse of second triangle, chances are. ठीक है. और BC में given है 12. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So if one side is 17, other side is root of 241 and base is 12. Base is 12, और since base is only 12, तो definitely क्योंकि हमें 8 और 15 को
में से किसी एक को एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. सो 15 शुड बी द एल्टीट्यूड बिकॉज 15 हमारा बेस तो नहीं हो सकता, बिकॉज इफ दिस विल बी 15 दिस साइड विल बी -3 और नेगेटिव में तो साइड लेंथ होगा नहीं. तो डेफिनेटली द ओनली पॉसिबल केस इज दैट 15 शुड बी द एल्टीट्यूड. दिस विल बी 8 and if this is 8 this will be 4 and then verify 15 square is 225, 4 square is 16, root 241 क्या आ जाएगा, root of 225 plus 16. तो yes, this should be the diagram. This is perfect diagram. अब एरिया निकाल लोगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 1/2 into base which is 12 into height which is 15. तो 1/2 into 12 into 15 this will be 90 square units, 90 centimeters square, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इजंट इट अमेजिंग? समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. टेक योर टाइम, पहले थोड़ा टाइम लो अपना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो. So sides of a triangle are given by square root of a square plus b square, square root of a square plus c square, and b plus c, where a, b, and c are positive numbers. So find the area of the triangle. What will be area of the triangle? So one side is square root of a square plus b square, one side is square root of a square plus c square, or third side is b plus c. Okay, so these square root values we can assume these as hypotenuse of triangles, isn't it so? If we had a triangle with side lengths a and b, then hypotenuse will be square root of a square plus b square. Similarly, if we had a triangle with side lengths a and c, hypotenuse will be a square plus c square. And in both these values, a is common. So a can be the altitude, the common altitude when we are forming the triangle. So let us form the triangle. And this question is not framed by me. This came in some exam. किसी और एग्जाम का क्वेश्चन है. ठीक है, सो एल्टीट्यूड विल बी लेट अस से a, एंड इफ द हाइपोटेन्यूज फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज a square plus b square, so definitely base will be b. Similarly, the second hypotenuse for the second right angle triangle will be, if that is root of a square plus c square, so base will be c. टोटल बेस हमारा आ गया b plus c और क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन विल बी 1/2 into a into b plus c. This will be the area of the triangle. So answer will be option D. Option D will be the answer in this case. Isn't it amazing? क्या मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके? अगर अपने एंड पे सॉल्व किया है तो कमेंट में मेंशन करना है कि यस यू वर एबल टू सॉल्व इट, यू वर एबल टू गेस इट. और अगर नहीं गेस कर पाए थे तो आप समझ गए होगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. बट बाकी लॉजिक भी समझेंगे इसके पीछे का, और भी लॉजिक समझते हैं और भी ट्राई करते हैं. ठीक है, देखो तो दीज वैल्यूज आर गिवन. अब ये सारी की सारी वैल्यूज अननोन है, ऑल दीज वैल्यूज आर अननोन. तो वी कैन एज्यूम द वैल्यू. ठीक है, हम इसमें से कुछ वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो कर सकते हैं. सो इफ वी लेट अस से टेक b एज इक्वल टू 0, इफ वी टेक b एज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? साइड लेंथ हमारी क्या हो जाएंगी? फर्स्ट साइड लेंथ विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दिस विल बी a, दिस विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड थर्ड साइड लेंथ विल बी c. तो a c एंड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा व्हेन वी आर एज्यूमिंग b इज इक्वल टू 0. दिस विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी 1/2 AC. अब देखो कौन सा ऑप्शन है 1/2 AC आंसर दे रहा है फॉर दिस केस. फर्स्ट ऑप्शन इज गिविंग, क्योंकि b को हमने 0 कर दिया, b को 0 कर दो, तो 1/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. नो, दैट इज नॉट गिविंग आंसर. सेकंड ऑप्शन में b को 0 कर दोगे, 1/2 इंटू रूट ऑफ 3c स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग 1/2 AC. इंस्टेड ये दे रहा है हमें 1/2 AC इंटू रूट 3, तो आंसर नहीं होगा. थर्ड केस में b को 0 पुट कर दोगे, सो b 0 हो गया, बचेगा 1/2 AC. तो यस, दिस इज गिविंग 1/2 AC एज द आंसर. बट फोर्थ केस में भी प्रॉब्लम आएगा, b को 0 पुट करते, दिस इज ऑल्सो गिविंग आंसर 1/2 AC. यानी कि a और b कैन नॉट बी द आंसर, बट c एंड d में से कोई भी एक आंसर हो सकता है. तो दिस इज नॉट कंक्लूसिव, दिस इज नॉट कंक्लूसिव, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? सो व्हाट वी कैन डू, क्योंकि a is common in both these brackets, both the square roots, so we can assume a as equal to 0.
we can assume a as equal to 0. But if we are assuming a as equal to 0, first square root will become b. स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि बी बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर यानी कि सी बन जाएगा, और थर्ड वैल्यू विल बी बी प्लस सी. तो साइड आंसर बी सी एंड बी प्लस सी. नाउ यू कैन से कि सर अब तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, बिकॉज साइड आंसर बी सी एंड बी प्लस सी बिल्कुल नहीं बनेगा. तो अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा, बेसिकली दीज आर व्हाट, वन साइड लेंथ इज बी प्लस सी एंड द अदर साइड्स आर बी एंड सी. तो सुपर इंपोज हो जाएंगी लाइन से एक के ऊपर एक. तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ट्रायंगल बनता तो एरिया विल बी जीरो. बन ही नहीं रहा है, एरिया विल बी एब्सोल्युटली जीरो. एरिया जीरो आ जाएगा हमारे इस केस में, बिकॉज ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है. सो अगर एरिया जीरो आ रहा है तो बस ऑप्शन में ए इक्वल टू जीरो पुट करके देखो कहां पे एरिया तुम्हारा जीरो आ रहा है. जहां पे एरिया जीरो आ रहा है दैट शुड बी अवर आंसर. फर्स्ट केस में तो नहीं आएगा जीरो, बिकॉज वन बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सेकंड केस में भी सिंस जहां जहां ए है वो तो जीरो हो जाएगा, बट बाकी पोर्शन तो रहेगा. ठीक है, एक सेकंड टर्म में नहीं है ए, तो ये तो रहेगा. फर्स्ट और थर्ड टर्म जीरो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर का, तो सेकंड वाला भी आंसर नहीं हो सकता. वैसे तो चेक कर ही चुके थे, बट ठीक है. अब थर्ड केस में देखोगे यहाँ पे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो रहने वाला है, तो ये भी जीरो नहीं होगा. द ओनली ऑप्शन दैट विल बिकम जीरो इज a into b plus c by 2. And since this becomes zero, because a is equal to 0, so this will be the answer for sure. ठीक है, तो ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं. वैसे तो ये समझ में आना चाहिए, बट फिर भी कभी कभी ये अप्रोच भी काम कर जाएगा तुम्हारा, कि वैल्यू पुटिंग करके अगर बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं तो. वैल्यू पुटिंग इज अ आर्ट, ये हमें सीखना है. अलजेब्रा में भी बहुत जगह काम आएगा, और अरिथमेटिक में भी एवरेज वगैरह वहां पे भी हम वैल्यूज एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करते ही करते हैं. तो ये आर्ट तुम्हें जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन को आसान कर देता है. Isn't it so? Is that clear? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, Savians ADBE and CF intersect at point P. If areas of triangles PAF, PBD, PFB, PCE are 40, 35, 30 and 84 respectively, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा? Savians क्या होती है? Savian is any line drawn from one vertex to another side. Any line drawn from one vertex to another side. ठीक है, सो AD, B एंड CF इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर. डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्ली इसका. तो ट्रायंगल ABC, we have AD, BE, and CF. These are Savians. Neither they are medians nor angle bisectors nor perpendiculars, any lines that are concurrent. ठीक है, एरिया ऑफ और इंटरसेक्ट कर रही है बी पे. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAF इज 40. एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD इज 35. एरिया ऑफ ट्रायंगल PFB इज 30 and area of triangle PCE is 84. So these are the areas that we know. Okay, now we need to find out area of triangle ABC. कैसे सॉल्व करेंगे? पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम. जो हमने समझे हैं कॉन्सेप्ट, बस उन्हीं को अप्लाई करना है बार बार. ठीक है, सो फोकस ऑन ट्रायंगल. आई बिलीव तुमने टाइम दिया होगा अपने एंड पे, 5-7 मिनट का मिनिमम टाइम दिया होगा. ट्रायंगल ABD पे फोकस करो. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD में व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल APB का एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB. ट्रायंगल APB का एरिया इज सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AFP एंड BFP. AFP का एरिया है 40, BFP का है 30, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज 70. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PDB और PBD दैट इज 35. ठीक है, सो देयर आर टू ट्रायंगल्स. First is this triangle and second is this triangle. And for both these triangles, observe, क्या हाइट सेम है दोनों ट्रायंगल्स के लिए? हाइट इज सेम. तो फॉर बोथ दीज ट्रायंगल्स हाइट विल बी सेम. दिस इज नॉट हाइट, BD इज नॉट हाइट, बट हाइट विल बी सेम. ठीक है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो परपेंडिकुलर अगर बाहर कहीं पे गिरेगा तो भी अल्टीमेटली सेम होगा दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो हाइट इज सेम. तो फॉर बोथ दीज ट्रायंगल्स हाइट इज सेम, बिकॉज बेस क्या है हमारा? बेस इज AD. ठीक है, सेम लाइन है.
ओके, तो अगर हाइट सेम है, इफ हाइट इज सेम, तो एरिया विल बी इन प्रपोर्शन टू लेंथ ऑफ बेस, एरिया विल बी इन प्रपोर्शन टू लेंथ ऑफ बेस। और एरिया का रेशियो क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी बी। दिस इज 70/35 विच इज 2/1। तो 2/1 आ रहा है, तो यही सेम, दिस सेम विल बी रेशियो ऑफ बेसिस विच आर ए पी एंड पी डी। तो ए पी बाई पी डी विल बी इक्वल टू 2/1। वेरी इंपॉर्टेंट, ए पी और पी डी का रेशियो विल बी 2/1, 2:1। इज दिस क्लियर? रेशियो ऑफ ए पी एंड पी डी विल बी 2:1. Isn't it so? Is that part clear? Is that clear? And if that is understood, अगर ये बात समझ में आ गई है, तो now focus on triangle ADC. Now focus on triangle ADC. तो in triangle ADC, triangle APC and triangle CDP. तो triangle APC and triangle CDP. तो फॉर बोथ दीज ट्राइंगल्स अगेन हाइट विल बी सेम। बेस हमारा क्या है? बेस एडी है, ठीक है, बेस इज एडी, हाइट सेम है दोनों ट्राइंगल्स के लिए। सो एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एपीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीपी, दोज विल आल्सो बी इन द रेशियो 2:1, या इन द रेशियो एपी बाई पीडी, इन द रेशियो ऑफ द बेस, बिकॉज हाइट सेम है, दैट इज वाई दीज विल आल्सो बी इन द रेशियो 2:1। एंड इफ दैट इज द केस, तो हमारा जो ट्राइंगल ए सी डी पी है, ट्राइंगल सी डी पी 1 यूनिट एरिया है उसका, तो लेट अस अज्यूम कि एरिया फॉर दैट ट्राइंगल इज इक्वल टू ए, बिकॉज द एरिया इज 1 यूनिट। सो फॉर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल एपीसी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी शुड बी डबल दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीपी। तो दिस शुड बी 2a, टोटल एरिया 2a हो जाएगा। एंड आउट ऑफ दिस 2a, 84 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 2a माइनस 84। पॉज द वीडियो और एक बार ध्यान से समझो इस बात को कि अगर फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हमारा ए था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी एंड सीडीपी, एपीसी एंड सीडीपी विल बी 2:1। तो इफ 1 यूनिट और ए इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी, देन 2 यूनिट और 2a विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी। एंड इफ 2a इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी, तो ट्राइंगल एपीसी बनता है हमारा ट्राइंगल एपीई और ट्राइंगल पीसीई से। पीसीई का एरिया 84 है, तो एपीई का एरिया हो जाएगा 2a माइनस 84। Is this clear? This much should be clear. Okay, this much should be clear. Now focus on base AB. बेस AB फोकस करो। अभी तो देखो समझने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार समझ रहे हो, अदरवाइज बाद में ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी बिल्कुल। बेस AB पे फोकस करो। बेस AB पे देयर आर 2 ट्रायंगल्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, ट्रायंगल APF एंड ट्रायंगल BPF। APF एंड BPF, इनके एरिया का रेशियो क्या है? 40/30। एंड सिंस फॉर दीज 2 ट्राइंगल्स अगेन बेस सेम है, यानी कि बेस एक कॉन्टिन्यूएशन में है और हमारा हाइट सेम है। बेस सेम नहीं है, बेस तो डिफरेंट है, ठीक है। बेस जो लाइन है हमारा दैट इज AB, बेस इज नॉट सेम बट हाइट इज सेम, हाइट सेम है हमारा। तो बेस का जो रेशियो होगा वही सेम हमारा एरिया का रेशियो होगा, यानी कि बेस का रेशियो क्या आ जाएगा? AF बाई BF। एंड रेशियो ऑफ एरिया इज 4/3, 40/30, 4/3। तो AF बाई BF विल बी 4/3, 4:3 रेशियो आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, 4:3 रेशियो आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा पलट के बना देते हैं तुम्हारे समझ के लिए, ठीक है। एक बार फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ताकि तुम्हें और बेटर समझ में आए। वेट सेकंड, with let us say AB as base. So AB is base, this is F, this point is P. Area of triangle CDP is A. This area is A. Area of triangle APE is 2A minus 84. APE is 2A minus 84. And area of triangle PAF is 40. PBD is 35.
and PFB is 30 and PCE is 84. सारी एज आ गए और हमें पता है AF is to FB क्या है, that is 4:3. This ratio is 4:3. ठीक है. सो इफ बेस का रेशियो, नाउ फोकस ऑन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACF and triangle BCF. So for triangle ACF and BCF, height is same. Height same है. So if height is same, the area will be in the proportion of base का ratio, और base का ratio है 4/3. तो area will be in proportion 4:3 और basically AF is to FB. ओके. और क्या वैल्यू आ रहा है एरिया का, 84 प्लस 2A माइनस 84 प्लस 40. तो दिस सम विल बी, दिस कंप्लीट सम विल बी 40 प्लस 2A, तो 2A प्लस 40 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 35 प्लस A, यानी कि A प्लस 65, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4/3. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF विल बी 4/3 और ट्रायंगल ACF का एरिया विल बी समेशन ऑफ द पार्ट्स, that is area of triangle CEP, area of triangle AEP and area of triangle APF. Similarly, area of triangle BCF will be summation of all the parts, that is CDP, PDB and PFB. तो A plus 65 आ गया. अब बस इक्वेट कर दो इसको. So 6A plus 120 is 4A plus 260. तो 2A will be 140 और यहां से A हमारा आ जाएगा 70. A will be 70. टोटल एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. Will sum of all these triangles यानी कि 2A plus 40 plus A plus 65, 3A plus 105. So that will be 315. 210 plus 105, 315 will be our answer. Area of triangle ABC will be 315. क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this clear? Okay. ठीक है. क्या समझ में आता है? अब इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, बट आई बिलीव कि अभी समझ में आया होगा जो हमने डिस्कस किया है. ओके. इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, द बेटर मेथड. बट ये सेकंड मेथड तभी समझ में आएगा जब मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला तुमने सेशन देखा होगा, लास्ट वाला सेशन जो मैंने कल नाइट में अपलोड किया है. अगर नहीं देखा होगा तो ये मेथड समझ में नहीं आएगा. उसके लिए पहले उस सेशन को देखना, फिर वापस से सॉल्यूशन देखना. A, B, C and AD B, CF and P is the intersection point. Then PAF is 40. PBD is 35, PFB is 30 and this is 84. Okay. ठीक है. तो फर्स्ट कंक्लूजन that AB is the base and on AB as the base there are two triangles BFP and AFP. 30-40 एरिया है उनका, हाइट सेम है दोनों के लिए. सो इफ हाइट इज सेम तो बेस का रेशियो वही होगा जो कि एरियाज का रेशियो है, यानी कि रेशियो ऑफ बेस विल बी 3:4. रेशियो ऑफ बेस विल बी 3:4. Similarly, focus on line AD. So on line AD, there are two triangles, triangle ABP and triangle BDP. अब triangle ABP का एरिया 70, BDP का एरिया 35, and for both these triangles height is same. तो अगर height same है तो एरिया का रेशियो will be same as बेस का रेशियो, यानी कि बेस का रेशियो क्या आ जाएगा? AP और PD का रेशियो will be 70:35 यानी 2:1. तो this will be 2:1. This will be 2:1. Okay. Now focus on these two lines, line AB and line AD. So both these lines का कॉमन पॉइंट क्या है? A है, A is the common point और हमें वेट्स असाइन करने हैं पॉइंट्स को. So as per line AB, weight assigned to A should be 3 units. As per line AD, weight assigned to point A should be 1 unit. तो 3 यूनिट्स होना चाहिए as per line AB, 1 यूनिट as per line AD. तो 3 into 1, 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं वेट को. ठीक है. सो वेट एट A point should be equal to 3. And if 3 units is equal to 3, line AB पे फोकस करो. If 3 units is equal to 3, तो 4 into equal to 4.
सो वेट असाइन टू बी विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट्स होंगे, ठीक है। सो 4 यूनिट्स हो जाएगा वेट पॉइंट बी पे। पॉइंट एफ इज द पाइवॉट, तो यहां पे वेट विल बी 4 + 3 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिमिलरली नाउ फोकस ऑन लाइन एडी, ऑन लाइन एडी रेशियो इज 2:1, तो फॉर 1 यूनिट वेट इज इक्वल टू 3 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 3 हो गया फॉर दिस लाइन। सो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो वेट एट पॉइंट 6 पॉइंट डी विल बी 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। एंड सिंस डी इज द पाइवॉट ऑफ लाइन बी सी, तो अगर डी पे वेट 6 आ रहा है, बी पे 4 आ रहा है, तो सी पे कितना होगा 2 होगा, तभी तो समेशन 6 आएगा। तो वेट एट पॉइंट सी शुड बी 2। बी पे वेट है 4, सी पे वेट है 2, तो बीडी और सीडी का रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा 2:4, और या फिर सिंपली 1:2। सो रेशियो ऑफ BD is to CD is 1:2। और सिंस फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, बोथ दीज ट्रायंगल्स हाइट इज सेम, तो अगर हाइट सेम है तो एरिया विल बी इन प्रपोर्शन टू BD एंड CD, BD by CD, और BD by CD है 2/1। और ट्रायंगल ABD का एरिया हमें पता है, ट्रायंगल ABD का एरिया वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि सारी वैल्यूज नोन है, 40 + 30 + 35, तो दिस इज 105। एक सेकेंड 1:2 आएगा ना ABD बाई, हाँ उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिखा है एक्चुअली, पहले 2 देख लिया ना, देखा नहीं 2 के बाद में 4 भी लिखा हुआ था। एनीवे, तो दिस विल बी 1/2। सो 105 इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट एरिया की वैल्यू कितनी है 105, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना हो जाएगा, दैट विल बी 105 × 2, 210। सो एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल विल बी 105 and 210 का सम, यानी कि 315। दिस विल बी आवर आंसर। क्या ये मेथड समझ में आया है? अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला सेशन देखा होगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। तो उस केस में सबसे पहले मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला सेशन प्रॉपर्ली देखना है, समझना है, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को चेकआउट करना है। ओके, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में विल बी डिस्कसिंग अदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एरिया। और आई बिलीव जो भी डिस्कस किया हमने सेशन में वो मजा आया होगा, उसमें समझ में आएंगी होंगी चीजें बहुत सारी, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, आई विल रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना ताकि उनका बेनिफिट हो सके। दैट इज ऑल इन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।